السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الحکیم المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے عزت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے حضور آقا و مولا انیس الغریبین مراد المشتقین شمس العربین طه و یاسین رحمت للعالمین، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ بڑے بابا سے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دیر سے آپ لوگ نعت مصطفیٰ کی سماعت کر رہے تھے اور علماء کا خطاب بھی سماعت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں بھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اگر تھوڑی دیر آپ لوگ برداشت کیجیے گا تو انشاءاللہ ان علماء کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاعر فرماتا ہے، خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا، خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا، دو عالم میں نہیں پایا کوئی ہمسر محمد کا، خدا کے بعد ہے سب سے بڑا رتبہ محمد کا، دو عالم میں نہیں پایا کوئی ہمسر محمد کا، اور نہ جانے کتنے کعبے بن گئے ہوتے عقیدت کی، نہ جانے کتنے کعبے بن گئے ہوتے عقیدت کی، زمین پہ پڑ گیا ہوتا اگر سایہ محمد کا، نہ جانے کتنے کعبے بن گئے ہوتے عقیدت کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مولا آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ چند ہیں لیکن آپ لوگوں نے جو ابھی نعت مصطفیٰ شعرا پڑھ رہے تھے، ان کو نواز رہے تھے، آپ دیکھ کر کے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ کم ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ آپ لوگ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے بڑے مجمع میں جو پڑھنے کا مزہ نہیں آتا تھا وہ مزہ آپ لوگوں نے دلوا دیا، اور پڑھنے والے کو بھی بڑا اچھا لگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ نے آج مصطفیٰ کی محبت میں اس پروگرام کو سجایا رچایا بسایا۔ کسی شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے،
وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے اور گنہگاروں کو نہلا کے آب زمزم سے گنہگاروں کو نہلا کے آب زمزم سے مدینہ جانے کے لائق بنایا جاتا ہے اور سرکار خود ہی چلے آتے ہیں خدا کی قسم سرکار خود ہی چلے آتے ہیں خدا کی قسم جہاں سرکار کا جلسہ سجایا جاتا ہے سرکار خود ہی چلے جاتے ہیں خدا کی قسم جہاں سرکار کا جلسہ سجایا جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اس لیے کہ اعلانسر کو اور مقرر کو بہت کم ہی لوگ نوازتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے مالدار ہیں لیکن اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے اور گئے جب عرش پہ سرکار تو رب نے فرمایا گئے جب عرش پہ سرکار تو رب نے فرمایا آپ ہی جاؤ پیارے روکتا کون ہے آپ ہی جاؤ پیارے روکتا کون ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے برادران اسلام بس چند منٹ آپ لوگ سنیے گا تو ماشاءاللہ دیکھیے اللہ ہمارے اس چچا کو بھی سلامت رکھے ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے چند منٹ آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کرتا ہوں دعا کیجئے گا کہ چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں برادران اسلام ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں پیدا کیا کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے لیکن جب آپ علماء سے پوچھئے گا علماء سے سوال کیجئے گا تو علماء کا جواب ہوگا جب ایک نبی کا وقت ختم ہوتا تھا تو اللہ دوسرے نبی کو پیدا کرتا تھا حضرت آدم کا وقت ختم ہوا تو شیش کو خدا نے بھیج دیا شیش کا وقت ختم ہوا نوح کو خدا نے پیدا کیا نوح کا دور ختم ہوا ابراہیم کو اللہ نے پیدا کیا گویا کہ ایک نبی کا وقت ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو پیدا کرتا تھا برادران اسلام کتابوں کا مطالعہ کیجئے پتہ یہ چلے گا ایک نبی سے جو دوسرے نبی کا زمانہ ہوا کرتا تھا ایک نبی سے جو دوسرے نبی کا وقت ہوا کرتا تھا بڑی مشکل سے 100 یا 200 سال کے بیچ میں ہوا کرتا تھا بڑی مشکل سے 60 یا 70 سال کے بیچ میں ہوا کرتا تھا لیکن برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کو پیدا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کے بعد 570 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو پیدا نہیں کیا کتنے سالوں تک 570 سالوں تک جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے چوتھے آسمان پر اٹھایا تو 570 سال تک خدا نے کسی نبی کو پیدا نہیں کیا اب ذرا غور فرمائیے ایک مسجد کا امام اگر ایک وقت میں نہ رہے ایک مسجد کا امام اگر ایک وقت میں نماز نہ پڑھائے تو ان کی غیر موجودگی میں کوئی مقتدی نماز پڑھا دیتا ہے اگر ایک مقتدی آگے بڑھ کر کے امامت کر دے دوسرا مقتدی کہہ دیتا ہے کہ یار اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ 5 وقت کی جگہ تو 4 ہی وقت کی نماز پڑھتا ہے دوسرا مقتدی اگر نماز پڑھا دے اس کے اوپر بھی لوگ فتویٰ ڈال دیتے ہیں تیسرا مقتدی اگر نماز پڑھائے لوگ اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں مسلمانوں ذرا غور کیجئے اگر ایک مسجد کا امام صرف ایک وقت میں اگر نماز مسجد میں نہ پڑھائے تو مسجدوں میں بوال پیدا ہو جاتا ہے مسجدوں میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے مسجدوں میں جھمیلا کا گھر بن جاتا ہے لیکن ذرا سوچ کر کے دیکھیے جو رب تبارک و تعالیٰ نے 570 سال تک
किसी नबी को पैदा न किया, 570 साल तक कोई रसूल को खुदा ने पैदा न किया, 570 साल तक अल्लाह ने जब नबी को पैदा न किया तो दुनिया की हालत कैसी रही होगी, जमीन की हालत कैसी रही होगी। अरे यार जमीन की हालत तो छोड़ो, जिस जगह अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया, जिस जगह खुदा ने अपने यार को पैदा किया, जिस जगह खुदा ने अपने हबीब को पैदा किया, वो अरब की सरजमीन तो इतनी भयानक बन चुकी थी, इतनी भयानक बन चुकी थी कि बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे, बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा जला दिया करते थे। यही तक महदूद नहीं बल्कि बेटे अपनी माँ के साथ निकाह कर लिया करते थे, भाई अपनी बहन को सरेआम कत्ल कर दिया करते थे। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर, काबतुल्लाह शरीफ के अंदर, वो काबतुल्लाह जिसे दुनिया में अल्लाह के सबसे पहला पैगंबर हजरत आदम अला नबीना ने ताबीर किया, फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उसे बनाया और जब तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने उसे दुनिया का किबला बना दिया। वो काबतुल्लाह के अंदर में 360 खुदाओं को पूजा की जा रही थी। जरा गौर कीजिएगा मुसलमानों, 570 साल तक जब अल्लाह ने कोई नबी को पैदा न किया तो अरब की सरजमीन इतनी भयानक हो चुकी थी, अरब की सरजमीन इतनी दर्दनाक हो चुकी थी कि बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को गाड़ रहा है, बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को जला रहा है, बेटे अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है, भाई अपने बहनों को सरेआम कत्ल कर रहा है, काबे के अंदर में घोड़े बांधे जा रहे हैं, काबे के अंदर में बुतों की पूजा की जा रही है। रब तबारक व तआला का चाहने वाला, रब तबारक व तआला का मानने वाला अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाता है और रब की बारगाह में अर्ज किया, हे परवरदिगार आलम, तूने दीने खुदा को चलाने के लिए आदम सफीउल्लाह को पैदा किया, दीने खुदा को चलाने के लिए नूह नजीबुल्लाह को पैदा किया, दीने खुदा को चलाने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा किया, दीने खुदा को चलाने के लिए इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा किया, दीने खुदा को चलाने के लिए मूसा कलीमुल्लाह को पैदा किया। लेकिन हे परवरदिगार, तूने आदम को पैदा किया, वापस ले लिया, नूह को पैदा किया, वापस ले लिया, इब्राहिम को पैदा किया, वापस ले लिया, मूसा को पैदा किया, वापस ले लिया। हे परवरदिगार, अब दीने खुदा को कौन चलाएगा? अब दीने खुदा को चलाने के लिए किसी ऐसी हस्ती को भेज दे, कोई ऐसा रसूल भेज दे जिसके अंदर में आदम की आदमियत भी हो, नूह की शुजाअत भी हो, इब्राहिम का हुस्न भी हो, इस्माइल की कुर्बानी भी हो, अय्यूब का सब्र भी हो, यूसुफ का जमाल भी हो, मूसा का कमाल भी हो। तो खुदा ने कहा था, हे मेरे बंदो, अब फिक्र न करो, इसलिए कि अब तक दीने खुदा को चलाने के लिए कभी कलीमुल्लाह जा रहे थे, कभी नजीबुल्लाह जा रहे थे, कभी सफीउल्लाह जा रहे थे, लेकिन याद रखो अब कलीमुल्लाह नहीं जाएंगे, बल्कि दीने खुदा को चलाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चंद मिनट सुनिएगा तो आप लोग सुनिएगा। खुदा ने क्या कहा? अब दीने खुदा को चलाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएंगे। और बरादराने इस्लाम, मेरे महबूब के नूर को अल्लाह ने आदम के पुष्ट से मुंतकिल किया, हजरत आमना के पेट में रख दिया। अब जरा गौर फरमाइए कि जो खुदा अपने महबूब को पैदा करना चाहा तो पूरी दुनिया को बताया, हे दुनिया वालों, जिस महबूब को पैदा कर रहा हूँ, जिस रसूल को पैदा कर रहा हूँ, वो रसूल देखो तो कितना लाजवाब है। बरादराने इस्लाम, जरा गौर कीजिए, जब अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला के पुष्ट से, अब्दुल्ला की पेशानी से मुस्तफा के नूर को मुंतकिल करके हजरत आमना के बदन पाक में भेजा, तो खुदा ने अपने रसूल की अजमत को कैसे बुलंद किया। मेरे मुस्तफा का नूर हजरत आमना के शिकम में है। मेरे मुस्तफा एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठे महीने में पहुंचते हैं। हर मुसलमान जानता है, हर इंसान जानता है कि एक बच्चे की पैदाइश 9 महीने के
के बाद हुआ करता है, एक बच्चा दुनिया में 9 महीने के बाद हुआ करता है। बरादराने इस्लाम जरा गौर फरमाइए, मेरे रसूल माँ के पेट में है, छठा महीना पहुँचता है, छठा महीना पहुँचने के बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल होता है। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, जैसे ही हजरत आमना को खबर मिलती है, हजरत आमना अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाती है और रब की बारगाह में अर्ज करती है, हे मेरे महबूब, हे मेरे परवरदिगार, जो बेटा अभी दुनिया में पैदा नहीं, जो बेटा अभी तक दुनिया में आया नहीं, हे परवरदिगार आलम, तूने उसके सर से बाप का साया उठा लिया। कसम खुदा के मुसलमानों, हजरत आमना को इतनी तकलीफ हुई थी जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, और उस वक्त के जमाने में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, जिस वक्त औरतों को मनहूस समझा जाता था, जिस वक्त औरतों को सती किया जाता था, जिस वक्त औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, हजरत आमना जब अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका करके, इधर हजरत आमना रोती है, जंगलों में जानवर रो पड़ते हैं, पहाड़ों के ऊपर जिन्नात रो पड़ते हैं, आसमान के ऊपर फरिश्ते रो पड़ते हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ये परवरदिगार, ये तेरा कैसा इंसाफ है, जो रसूल तेरा नबियों का इमाम, जो पैगंबर तेरा रसूलों का सरदार, जो नबी तेरा सबसे आला, जो पैगंबर तेरा महबूब, वो पैगंबर दुनिया में आया नहीं, तूने बाप का साया उठा लिया। हे खुदा, जब तक दुनिया का दस्तूर होता है कि बाप की उंगली को पकड़ करके बेटा चलना सीखता है, बाप के कंधे पर सवार होकर के बेटा सवारी करता है, बाप की आंख से आंख मिला करके बेटा देख सकता है। हे परवरदिगार, ये तेरा कैसा इंसाफ है कि जो नबी पैदा हुआ नहीं, उस नबी के बाप का साया तूने सर से उठा लिया। हे खुदा, अब तेरे महबूब को चलना कौन सिखाएगा, अब तेरे रसूल को बोलना कौन सिखाएगा। तो खुदा ने कहा था, ये जिब्राइल खामोश हो जा। जिब्राइल ने कहा था, हे परवरदिगार, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तो खुदा ने फरमाया, ये जिब्राइल याद रख, मेरा महबूब तो इतना लाजवाब है कि अगर अब्दुल्ला मेरे महबूब की उंगली को पकड़ करके अगर चलना सिखा देता तो कल मैदान महशर में कह सकता था, ये खुदा, महबूब तेरा चलना मैंने सिखाया, नबी तेरा खाना मैंने खिलाया, रसूल तेरा परवरिश मैंने किया। तो ये जिब्राइल याद रख, मुझको ये गवारा न हुआ कि मैदान महशर में अब्दुल्ला एहसान जताए, इसलिए ये याद रख कि मुस्तफा को मैंने बेसहारा नहीं बनाया, बल्कि बेसहारों का सहारा बना दिया। मुस्तफा को मैंने बेसहारा नहीं बनाया, बल्कि बेसहारों का सहारा बना दिया। और बरादराने इस्लाम, जरा गौर फरमा करके देखिए, मेरे रसूल को अल्लाह ने कितना लाजवाब पैदा किया। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाने के बाद हजरत आमना फरमाती है कि जिस घर में मेरे नबी की विलादत हुई वो कमरा अतर से मुअत्तर हो जाता है। बरादराने इस्लाम, जरा गौर फरमा करके देखिए कि जिस कमरे में मुस्तफा तशरीफ लाए, जिस कमरे में मुस्तफा पैदा हो, वो कमरा अतर से मुअत्तर हो जाए। जब नबी दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया में पैदा होने के बाद हर मुसलमान जानता है, हर इंसान जानता है कि मुस्तफा अपने पेशानी को रब की बारगाह में झुका देता है और खुदा की बारगाह में अर्ज करता है कि या रब हबली उम्मती, या रब हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। जरा गौर करो मुसलमानों, खुदा ने अपने नबी को कितना लाजवाब बनाया, इतना लाजवाब बनाया, इतना लाजवाब बनाया कि तनवीर उसी मुस्तफा पे नाज करे, तमकीन उसी मुस्तफा पे नाज करे, सालहीन उसी मुस्तफा पे नाज करे, नबीयीन उसी मुस्तफा पे नाज करे। अरे वो मुस्तफा तो इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है कि शम्स और कमर उसी मुस्तफा पे नाज करे, जिन्नो बशर उसी मुस्तफा पे नाज करे, पर्वो कमर उसी मुस्तफा पे नाज करे, शजरो हजर उसी मुस्तफा पे नाज करे। अरे खुदा ने उस मुस्तफा को इतना लाजवाब बनाया, इतना लाजवाब बनाया कि जमीनो समा उसी पे नाज करे, मदीनो मकान उसी पे नाज करे, चुनीनो चुना उसी पे नाज करे, माहे रमज़ान उसी पे नाज
नाज करे, अरे वो नबी तो इतना लाजवाब कि सिद्दीक की सदाकत उसी पे नाज करे, उमर की अदालत उसी पे नाज करे, उस्मान की सखावत उसी पे नाज करे, अली की शुजाअत उसी पे नाज करे। अरे वो नबी तो इतना लाजवाब है कि जलवाए खुदा उसी नबी पे नाज करे। और क्यों ना नाज करे, हमारे नबी तो इतने अच्छे हैं कि बरेली के इमाम पुकार उठते हैं कि या रसूल अल्लाह, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप गौर फरमा करके देखिए वो नबी कितना लाजवाब है। बरादरान इस्लाम, जब उस नबी को अल्लाह ने पैदा किया, पैदा होने के बाद मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले क्या दुआएं की, या रब हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। मुसलमानों जरा गौर फरमा करके देखिए, जो नबी पैदा हुए, पैदा होने के बाद अपने रब को याद न किया, बल्कि सबसे पहले अपने गुनहगारों को या उम्मतियों को याद किया। मुसलमानों जरा गौर फरमा करके देखिए, जिस नबी का अभी पल भर भी वक्त नहीं हुआ है, जिस नबी का अभी चंद मिनट का वक्त हुआ है दुनिया में, वो नबी सबसे पहले अपनी उम्मतियों को याद कर रहा है। लेकिन एक उम्मती दुनिया में पैदा हुआ, पैदा होने के बाद 60-70 साल की उम्र तक पहुंचा, लेकिन कहने पर कह दिया हम मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हैं, मुस्तफा से प्यार करने वाले हैं, मुस्तफा से इश्क करने वाले हैं। लेकिन जब मुस्तफा के इश्क की बारी आई, जब मुस्तफा से मोहब्बत की बारी आई, तो अब हमारे कदम पीछे हो जाते हैं। मुसलमानों जरा गौर फरमा करके देखिए, मेरे मुस्तफा ने अपने उम्मतियों को कितना बड़ा एजाज बख्शा है, कितना बड़ा मर्तबा बख्शा है कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ये मेरे कलमा पढ़ने वालों, अगर हो सके तो तुम दुआ करो कि रब तबारक व तआला अगर तुम्हारी मौत लिखे तो मदीने की सरजमीन में लिखे। कहाँ लिखे? कहाँ लिखे? मदीने की सरजमीन में लिखे। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि तुम दुआ करो कि रब तबारक व तआला अगर तुम्हारी मौत लिखे तो मदीने की सरजमीन में लिखे। बरादरान इस्लाम जरा गौर फरमा करके देखिए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अगर जो मदीने में न मर सका उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, अगर वो दुनिया के किसी कोने में इंतकाल हुआ, दुनिया के किसी कोने में मरा, और अगर वो ख्वाहिश करता था कि मदीने में मेरा इंतकाल हो, जन्नतुल बकी में मेरा दफन हो, तो याद रखो, अगर वो हिंदुस्तान में मरेगा, लेकिन जब रब तबारक व तआला महशर में उठाएगा तो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से उठाएगा। इस्लाम जरा गौर फरमा करके देखिए, जब मुस्तफा ने ये बात कही तो जरा गौर फरमाइए कि अब मुस्तफा के मदीने से एक मुसलमान को कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। जब एक मुसलमान को मदीने से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। मदीने की सरजमीन है, मदीने की सरजमीन में मुस्तफा का रोजा है, मुस्तफा के रोजे के सामने में एक 8 साल का बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है और रोज़े रसूल की तरह अपना चेहरा करता है और रब के प्यारे महबूब की बारगाह में अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखा हूँ, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से प्यासा हूँ, ये अल्लाह के रसूल, मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दो, मेरे लिए पीने का इंतजाम कर दो। बरादरान इस्लाम जरा गौर फरमा करके देखिए, एक 8 साल का बच्चा रोज़े रसूल की तरफ चेहरा करके रब के महबूब की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि या रसूल अल्लाह,
3 दिन से भूखा हूँ, मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दो। बरादरान इस्लाम जरा गौर फरमा करके देखिए, उसी असना में एक आलिम दिन, एक आलिम बावकार उसी असना में हज बैतुल्लाह करके रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए पहुंचा था। जैसे ही उस मुस्तफा के गुलाम को, एक नन्हे से गुलाम को रोते हुए देखा, उस आलिम बावकार उस गुलाम के पास पहुंचा, उस बच्चे के पास पहुंचा। आज कहने वाले कह देते हैं कि उलमा अपने मोहब्बत से मोहब्बत नहीं करते। अरे मुसलमानों याद रखो, एक उलमा के अंदर में अल्लाह ने इतनी मोहब्बत भरी है, इतनी मोहब्बत भरी है कि जहाँ एक उलमा अपनों से मोहब्बत करता है, वहीं बेगानों से भी मोहब्बत करता हुआ नजर आता है। बरादरान इस्लाम जरा गौर फरमा करके देखिए कि जब वो आलिम बावकार उस बच्चे को रोता हुआ देखा, रोता हुआ देखने के बाद उस बच्चे के करीब पहुंचता है और कहता है, बेटा जरा ये तो बताओ तुम रो क्यों रहे हो? वो बच्चा जवाब देता है, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैं मुस्तफा की बारगाह में फरियाद कर रहा हूँ। वो आलिम बावकार उस बच्चे को सीने से लगाता है और कहता है, ए बेटा याद रख, आज मुस्तफा ने तेरे खाने का इंतजाम के लिए मुझको भेजा है। बरादरान इस्लाम, वो आलिम बावकार उस बच्चे को उठाता है, अपने कमरे में लेकर के पहुंचता है और कमरे में पहुंचने के बाद दस्तरखान बिछा दिया जाता है, बच्चे के सामने खाना रख दिया जाता है। बच्चा अभी कुछ सोच रहा था कि वो आलिम दीन कहता है, बेटा जल्दी से खाना खा ले, तेरी माँ रास्ता तक गई होगी, जल्दी से खाना खा ले, तेरा बाप इंतजार कर रहा होगा। वो 8 साल का बच्चा जवाब देता है कि ए अल्लाह के नेक बंदे सुन ले, माँ इसकी इंतजार किया करती है, जिसके बेटे के सर पर माँ का आंचल हुआ करता है, बाप उसका रास्ता देखता है, जिस बाप का साया बेटे के सर पे होता है। मेरी माँ भी इंतकाल हो चुकी है, मेरा बाप भी इंतकाल हो चुका है, दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। वो आलिम बावकार उस बच्चे से पूछती है, ये बेटा जरा ये तो बता, तू किस खानदान से ताल्लुक रखने वाला है, तू किस कबीले से ताल्लुक रखने वाला है, तू किस खानदान में पैदा हुआ है? बरादरान इस्लाम, वो बच्चा जवाब देता है, ए आलिम दीन सुनो सुनो, मैं सैयद खानदान में पैदा हुआ हूँ, मुस्तफा की औलाद में मैं पैदा हुआ हूँ, और याद रख मैं कोई ऐसे वैसे घराने में नहीं, बल्कि अहले बैत के खानदान में पैदा हुआ हूँ। इतना सुनना था। वो आलिम बावकार उसके पेशानी को चूमते हैं, सीने से लगाते हैं और लगाने के बाद कहा, बेटा अगर तुम सैयद हो, मुस्तफा की औलाद हो, तो मेरे साथ चलो। बच्चे ने सवाल किया था, ए आलिम दीन तेरे साथ मैं कहाँ जाऊंगा? वो आलिम दीन कहता है, बेटा तुम मेरे शहर चल, अगर मेरे शहर के लोगों को अगर पता चलेगा कि तुम मुस्तफा की औलाद में से है, तो सैयद खानदान में से है, तो लोग तुझे अपने सर पर बिठा करके रखेंगे, तेरे लिए रहने के लिए हवेली का इंतजाम किया जाएगा, चलने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया जाएगा, आगे पीछे नौकरों की लाइन रहेगी, और याद रख तुझे एक से एक खाना मिलेगा। कसम खुदा के मुसलमानों, जैसे ही उस आलिम दीन ने कहा था, वो बच्चा खाने को ठोकर मारता है और बच्चा खड़ा हो जाता है, उस आलिम की कलाई को पकड़ता है और पकड़ने के बाद मुस्तफा के मज़ार के करीब लेकर के जाता है, और लेकर के जाने के बाद उस बच्चे ने कहा था, ए आलिम दीन सुनो सुनो, अगर तेरे साथ जाऊंगा तो क्या खाना मिलेगा? आलिम ने कहा, हाँ हाँ खाना मिलेगा। क्या हवेली मिलेगी? कहा, हाँ हाँ हवेली मिलेगी। क्या गाड़ी मिलेगी? कहा, हाँ हाँ गाड़ी मिलेगी। क्या नौकरों का लाइन रहेगा? कहा, हाँ हाँ नौकरों का लाइन रहेगा। उस बच्चे ने अपनी उंगली का इशारा मुस्तफा के रोजे के तरफ किया था और कहा था, ए आलिम दीन जरा ये तो बता, क्या तेरे शहर में मुस्तफा का मज़ार मिलेगा? कसम खुदा के मुसलमानों, जैसे ही बच्चे ने कहा था, वो आलिम दीन तड़प जाता है और कहने लगता है, ए बेटा सुनो सुनो, हवेली तो मिलेगी लेकिन मज़ार मुस्तफा ना मिलेगा, गाड़ी तो मिलेगी, रोज़े रसूल ना मिलेगा। तो बच्चे ने कहा था, ये मौलाना सुन ले, मैं खाने के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, पानी के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, माँ बाप के बगैर जिंदा तो रह सकता हूँ, लेकिन मुस्तफा के मदीने के बगैर मैं जिंदा
زندہ نہیں رہ سکتا۔ برادران اسلام ذرا غور فرما کر کے دیکھیے، ایک چھوٹے سے بچے 8 سال کے بچے نے دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والوں، کھانے کے بغیر تو میں زندہ رہ سکتا ہوں، پانی کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے مزار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ برادران اسلام ذرا غور فرما کر کے دیکھیے کہ جب مصطفیٰ کے پردہ کرنے کے بعد ایک بچہ مدینے سے اتنی محبت کرے، روزہ رسول سے اتنی محبت کرے، تو جب صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا تو صحابہ اپنے مصطفیٰ سے کتنی محبت کر رہے تھے۔ برادران اسلام، لیکن آج ہم ہیں اسی نبی کا کلمہ پڑھتے پڑھتے ہیں، اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا لاجواب بنایا کہ قرآن میں اعلان کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو 18,000 مخلوقات یعنی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، جو پروردگار عالم اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے۔ اب مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ اپنے رسول سے تم کتنی محبت کرو گے۔ ارے اتنی محبت کر لو، اتنی محبت کر لو کہ جب قبر میں جاؤ گے اور جانے کے بعد جب فرشتے تجھ سے سوال کرے گا کہ بتا اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو قسم خدا کے مسلمانوں اس وقت فخر سے کہہ سکو گے، اے فرشتوں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اس آدمی کے بارے میں میں کیا کہتا تھا، تو میں وہی کہتا تھا جو سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے تاجدار ساری زندگی پکارتے چلے گئے کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا تھکے نہیں نا آپ لوگوں کا غور نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ مجھ کو بھی پتا ہے کہ 12 پار کر چکا ہے، دیکھیے 12:30 بج چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور 12 بجنے کے بعد ایسے ہی سب کا 12 بج جاتا ہے، اور ہم لوگ آپ لوگ تو شاید ایک آج بہت دن کے بعد پہلی پہلی رات آپ جا گئے ہیں، لیکن لیکن ان علماء سے پوچھئے کہ جیسے ہی ماہ نور کا چاند نکلا ہے، ربیع النور شریف کا چاند نکلا ہے، یہ علماء کی جماعت شاید ہی کسی روز سوئے ہوں گے، اور بغیر سوئے پھر فجر میں بھی اٹھنا پڑتا، ان اماموں سے پوچھ کر کے دیکھیے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایک وقت بھی اگر کسی ضروریات کا تحت اگر چھوٹ جائے تو لوگ کس طرح سے پیش آتے ہیں، یہ بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں یہ علماء کی جماعت کوئی ایسی ویسی جماعت نہیں، بلکہ تو یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء کی جماعت انبیاء کی اولاد ہے، انبیاء کے وارث ہیں، اور بنی اسرائیل کے زمانے میں جو کام نبی کرتے تھے وہ کام میرے زمانے میں میرے علماء کریں۔ برادران اسلام ذرا غور فرما کر کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے ان علماء کا مرتبہ کتنا بلند کیا ہے۔ برادران اسلام جہاں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، اور جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم سب سے پہلے خدا کو راضی کرنے سے پہلے مصطفیٰ کو راضی کر لو، اور اگر کوئی مسلمان مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر مصطفیٰ کی اولاد سے گستاخی کر لے تو خود سوچ کر کے دیکھیے ان کا انجام کیا ہو، خود سوچ کر کے دیکھیے کہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں یہ کسی کے غلام نہیں ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کے نائب ہیں، مصطفیٰ کے وارث ہیں، مصطفیٰ کی اولاد ہیں۔
जब तक आपकी जिंदगी सलामत रहे कोशिश कीजिए आप उलमा का कदर करें, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें, खुदा की इबादत करें। इसलिए कि बरादरान इस्लाम आज हमारी जिंदगी खत्म होती चली जा रही है कि किसी की उम्र 60-70 साल खत्म हो चुकी है, लेकिन उनसे आप सवाल करके देखिए चचा, अब भी आप नमाज पढ़ लीजिए। जवाब देंगे बेटा अभी भी वक्त है, वक्त होने दो, मैं ठीक नमाज पढ़ लूंगा। लेकिन बरादरान इस्लाम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, वह एक बार कब्रिस्तान की तरफ जा चुका है, लेकिन इनके बावजूद अगर नमाज ना पढ़ोगे, खुदा की इबादत ना करोगे, और अगर खुदा की इबादत ना करोगे, मलकुल मौत आकर के तेरी रूह अगर निकाल ली, और निकालने के बाद जब कब्र की अंधेरी कोठरी में जाओगे, अरे जमीन पर रह करके तूने हवेली तो बना लिया, जमीन पर रह करके तूने बिल्डिंग तो बना लिया, जमीन पर रह करके तूने जायदाद तो कर लिया, जमीन पर रह करके तू मालदार तो हो गया, और जमीन पर रह करके तूने अपने घर को तो सजा लिया, लेकिन कब्र की वो अंधेरी कोठरी जहां आदम की उम्मत आज भी है, नूह की उम्मत आज भी है, इब्राहिम की उम्मत आज भी है, इस्माइल की उम्मत आज भी है। और याद रखो तो मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, और जब तक कयामत ना आएगी तुझको भी कब्र में रहना, तुझको भी कब्र में रहना है, और कितने दिन तक कब्र में रहना है ये किसी को पता नहीं। मुसलमानों खुद सोच करके देखो कि अगर दुनिया में चंद मिनट तक लाइन न रहे, दुनिया जमीन के ऊपर में अगर चंद मिनट रोशनी न मिले, तो एक मुसलमान घबराना शुरू कर देता है, एक मुसलमान तड़पना शुरू कर देता है कि इंसान बगैर लाइन के रह नहीं सकता। तो जो कब्र की अंधेरी कोठरी वहां मुसलमान कैसे रहेगा? तो मुसलमानों याद रखो, दुनिया में जब तक रहिए अपने नबी से मोहब्बत कीजिए, खुदा की इबादत कीजिए। याद रखिए दुनिया से कुछ जाने वाला नहीं है। आपने जो मुस्तफा के मिलाद के लिए मुस्तफा का जलसे का इंतजाम किया है, याद रखिए ये भी एक इबादत है। और मुस्तफा की आमद की खुशी मनाना ये रब तबारक व तआला का फैसला है। ये दुनिया वालों याद रखो, तुम हज बैतुल्लाह करने के लिए काबतुल्लाह तो जा रहे हो, लेकिन हज बैतुल्लाह करने के बाद तू अगर काबतुल्लाह में दुआ करे और तेरी दुआ अगर काबतुल्लाह में कबूल ना हो तो महफिल रसूलुल्लाह में कर लो, तेरी दुआ कबूल हो जाए। बरादरान इस्लाम, जो खुदा महफिल रसूलुल्लाह को इतनी कदर करे तो ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए दुनिया में जब तक रहिए आप खुदा की इबादत भी कीजिए, मुस्तफा से मोहब्बत भी कीजिए, उलमा का कदर भी कीजिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मौला इन्हीं चंद बातों पर हम तमामों को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अगर बोलने में किसी तरह की गलती खामी हुई हो तो अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नासिर करके मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।